જય જિનેન્દ્ર પિશલ. જય જિનેન્દ્ર. કેમ છે? મજામાં? હા બસ ચાલે છે. તમે લોકો કેમ છો? બસ મજામાં. મેં લોકો ઇન્ડિયા આવ્યા આજે. ઓહ ઓકે. Yeah. I wasn't sure કે છે કે નહીં, તો ડબલ ચેક કરી લઉં. ઓકે. અમે લોકો ક્યાંના ઇન્ડિયા વિચારે છે, બટ જતા નથી. Now you are gone, so we can ask the questions. શું થયું? આપણે વેક્સિનેશન ન લીધી હોય ને, અને કેવી રીતે જવાની ખબર નથી પડતી. ના, મેં પણ ક્યાં લીધી છે, તો પણ આઈ એમ હિયર. એટલે ખબર નહીં, બધા કહેતા હતા કે એરપોર્ટ પર RT-PCR કરે ન હોય તો તમને ત્યાં જ રહેવું પડે એવું બધું. ના, અમે તો આવે વિધાઉટ વેક્સિનેશન. RT-PCR 24 કલાક પહેલા કર્યું અને અહીંયા આવીને લેન્ડ થઈને પાછું કર્યું. ડન. Oh, અચ્છા. That's all. And if you're going to Gujarat, it's even easier. Maharashtra is a little more restrictive. Gujarat is even more lenient. Oh, so did you land on Mumbai airport ke સીધા Mumbai airport. અચ્છા. No, અમારે તો બધું ફેમિલી મહારાષ્ટ્ર જ છે. એટલે હા, તો પછી મહારાષ્ટ્રમાં you land and you get tested again. That's it. Okay. If you're not coming from an at-risk country, which we are not, so we just have to get tested and then go home. That's all. અમે ઘરે આવ્યા અને રિપોર્ટ બી આવી ગયો નેગેટિવ. ડન. ઈમેલ આવી ગયો, મેસેજ આવી ગયો. ના, અમે લોકોને એવું કીધેલું કે ત્યાં એરપોર્ટ પર તમને RT-PCR કર્યો અને એનું રિઝલ્ટ ત્યાં કઈ ઠેકાણા ન હોય. And then if you test positive, you have to quarantine in their hospital. હા, હવે પોઝિટિવ આવે પછી પોઝિટિવ આવે પછી ખબર નહીં WhatsApp પર. હા, મને પપ્પા ત્યાં જવું હતું, બટ આ વિરાટને લઈને જવું પડે ને, એટલે પછી કુંદન મને કે હમણાં બધી રિસ્ક ના લેતી. આ લોકો ડેલી ચેન્જ કરે છે, but we don't have to wait for the results because we are not from an at-risk company. It's on their website. So we're not at-risk company. That's why we are kind of એ લોકો આવશે. You just have to check. એ લોકો vaccination certificate આપશે, માંગશે. નથી કીધું, but I have RT-PCR. Like, okay, you did one there, go and get one now. તો એ લોકો તમને બે ઓપ્શન હોય છે, રેપિડ અને રેગ્યુલર. અમે રેગ્યુલર PCR ટેસ્ટ કરાવી અને કીધું કે તમે ટેસ્ટ કરીને જતા રહો. ટેસ્ટ કરીને અમે જતા રહ્યા અને we got the results after about 20. So we just organized our last class in 2021. Now we are in 22. So first of all, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. We started this class in the year of 2009. So when everyone was bachelor, especially Prerit ji, Pritesh ji, all were bachelor at the time. I was married because I got married in 2008. So after my marriage, I started this class in 2009. So, you know, so much of fear, so many years have passed. It is really unbelievable. We were in 2009 and now we are in 2022. 2000 मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2021 को तो अच्छे से याद रख नहीं पाए, 2021 ही निकल गया, 2022 में आ गए हम. जनागम के संदर्भ में अगर ये बात सोचूं मैं तो जनागम की वो बात मुझे बहुत सत्य प्रतीत होती है कि स्वर्ग में अनंत काल निकल जाता है, मतलब तीती सागर की आयु पूरी हो जाती है. तो हमें भी अब समझ में आने लगा. मतलब मुझे अच्छे से याद है कि 2001 में जब लोग बोलते थे 2020 में भारत टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा, तो ऐसा लगता था कैसे 2020 थोड़ी कभी आएगा, 2020 थोड़ी कभी आ सकता है. और 20 साल बाद कोई 20 साल निकलने थोड़ी हैं.
लेकिन 20 साल निकले और 20 साल से ज्यादा ही समय निकल गया, 21-22 साल हो गए। तो प्रत्येक जो नया वर्ष होता है, क्योंकि ये नया वर्ष हम इसलिए मनाते हैं कि अब पूरा वर्ल्ड में वही प्रचलन है, हमारी तारीख, हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सब उसी से है। वैसे हिंदी नववर्ष तो हमारा अलग आता है, गुड़ी पड़वा पे आता है वो। तो हम तो इस नववर्ष में भी अपनी जो आध्यात्मिक बात ढूंढनी है ना, हम वो ढूंढ सकते हैं, मिलती है उसमें। दूसरी बात, हमें इस बात से एक चिंता भी होने लगी है कि वी हैव लॉस्ट मोर 1 ईयर ऑफ आवर मनुष्य भव। हमारे मनुष्य भव का एक कीमती समय 1 साल और निकल गया। अभी तक जितना हमने प्रयोग किया इसका अध्यात्म के लिए, अब और चिंता की बात है कि समय हमारे पास से और चला गया 1 साल। तो उससे हम अपने आप से ही शिक्षा लें, हम अपने आप को मोटिवेट करें कि आई हैव लॉस्ट माय लॉट्स ऑफ टाइम एंड ईयर्स विदाउट डूइंग आत्म कल्याण और विदाउट द सेल्फ रियलाइजेशन। और आज से हम ऐसी प्रतिज्ञा करें कि अब आने वाले साल भले ही 2032 आएगा, तो 10 साल बाद भी जब हम देखेंगे तो हम हमारे सामने एक उपलब्धि होगी। आएगा 2032 पे आएगा, ऐसा तो है नहीं आएगा, 2032 पे ही आएगा, 2042 भी आएगा, सब आएंगे। हम रहे ना रहे दुनिया चलेगी, परंतु हम तो केवल अपनी बात करते हैं। तो हम अपनी बात करें तो ऐसा है कि हमें अपना प्रयोजन देखना है, और हमारा प्रयोजन है आत्म कल्याण का। वो हम प्रयोजन बराबर अपना निश्चित करें स्वयं के लिए, स्वयं से। यही इस नववर्ष की एक सार्थकता है। यहाँ जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर साल जो YGP इंदौर है, यहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ और स्वाध्याय करते हैं हम लोग करीब 8, साढ़े 8 से लेकर 10 बजे तक। तो 10:30, पौने 11 तक बच जाता है, साथ में खड़े होते हैं, चर्चा करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य होता है कि लोग यहाँ वहां ना जाएं, और सेकंड थिंग, स्वाध्याय का एक अवसर मिल रहा है सबको, तो उस दिन सब फ्री भी रहते हैं शाम को, तो वो स्वाध्याय हो जाता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कहीं गए थे क्या न्यू ईयर मनाने, कि घर पे ही थे? कुंजन जी? अब ये घर पे ही थे, बच्चे लोग वैसे भी अरे घर पे। अगेन हम तो, मैं तो बहुत सालों से अभी छोड़ी थी मनाना, बट जिस घर पे ही थे। नॉर्मली तो मैं कुछ पढ़ते रहता हूँ या शाम को रीड करते रहते हैं, बट इस साल आपने जैसे कहा वैसा एक थिंकिंग तो हुआ कि पूरा साल निकल गया और समय का पता नहीं चलता है। और अगेन ये साल ज्यादा से ज्यादा जितना भी फ्री टाइम था बुक्स पढ़ने में या धर्म ध्यान में लगाने की कोशिश तो की है, और उसके उसके फल से अब और भी बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब टाइम कम पड़ रहा है, तो एक वो रियलाइजेशन तो आ रहा है। गुड। और एक चीज ये भी है, जितना जितना सीख रहे हैं उतना और कम लग रहा है, सो ज्यादा पढ़ने का मोटिवेशन तो होता है। हाँ हाँ, नहीं ये है। एक्चुअली क्या होता है, हम जिस चीज को पहले जानते नहीं ना, हम दूर से बुरा मानते हैं उसको। बुरा मानते ही यूं समझो हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, या हमारे पास समय नहीं होता है उतना समझने के लिए। लेकिन जैसे ही जिनवाणी रूपी अमृत का पान किया जाता है, वैसे ही हमें ये पता चलने लगता है कि what we have done in our previous life, that was nothing, but I have to do lots of things for only myself. केवल मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझे ये काम करना है। तो मैंने तो जैसा कि बताया कि मुझे तो कभी-कभी विश्वास नहीं होता कि हम 2022 में आ गए।
2019 में ये सब चालू हुआ था, जो अभी तक कंटिन्यू है। 2019 गया, 19 का लास्ट था, लेकिन 2020 पूरा गया, 2021 पूरा गया, और मोर देन 2 years इट हैज बीन कि ये कोरोना चल रहा है। खैर, समय तो निकलेगा, वो उसकी अपनी गति है और वो किसी के रोके नहीं रुकता है। मूलतः पर्यायें तो बदलती हैं, वो कभी रुकने वाली नहीं। हम इन बदलती हुई पर्यायों में हमें क्या सोचना है, वो एक विचारणीय प्रश्न है। तो बढ़िया, कुंजन जी ने घर पे ही मनाया न्यू ईयर। हमारे इंदौर में उस दिन बहुत पार्टी हुई थी, लोग अलग-अलग जगह गए थे, क्योंकि यहाँ थोड़े इंदौर में लोग घूमने-फिरने के शौकीन ज़्यादा हैं। लेकिन मैं तो खैर सालों से क्या, मैं तो कभी गया ही नहीं। एक से विकल्प भी नहीं आया। रीज़न क्या है कि वो ऐसा लगता है कि अपने समय का उपयोग फिर अपने स्वाध्याय में करो, क्लास लेने में करो, तो वैसा रहा। तो रोहन जी, आप कहीं गए थे? जय जिनेन्द्र सौरभ जी, सभी को नववर्ष की बहुत अरे, शुभकामनाएं। सौरभ जी, आसपास में यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं। मेरे भैया यहाँ पे रहते हैं, मेरी सिस्टर यहाँ पर है। तो अभी मेरी सिस्टर ने एक नया घर लिया, वो लोग शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, भैया से मुलाकात हुई, फिर यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई। ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं था, बट यही अपने आप में स्पेशल हो गया कि सबसे मुलाकात हुई थी, तो यही अब बहुत बड़ी चीज़ थी, सबसे मिलना जुलना हुआ। थोड़ा समय एकांत में भी मिला, क्योंकि बहुत समय से लाइक ऑफिस का फ्रॉम द एंटायर ईयर आई हैव नॉट टेकन एनी ऑफ, जब तक ज़रूरी नहीं था तब तक। तो ये 5-8 दिन पूरा बंद था ऑफिस, तो थोड़ा टाइम मिला अपने लिए। वीकेंड्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि स्केड्यूल एकदम टाइट रहता है कि आपको यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, सब कुछ सेट है। बट इस बार थोड़ा सा ऑफ सेट चीज़ें थी, तो वो चीज़ें करने का मौका मिला और अपने आप को जानने का मौका मिला। स्वाध्याय निरंतर चलता रहा पूरे साल भर, और ऐसा लग रहा है कि लाइक लास्ट ईयर में आपसे इसी समय बात कर रहा था कि 2021 आया था, और आपने कहा था कि कैसा लगा, कैसा गया आपका बीता पिछला साल, और एकदम 22 हो गया, और आप बिल्कुल आज भी वही बात कर रहे हैं कि कैसा बीता आपका साल। तो यूजुअली एक चीज जो है कि पिछले 2-3 साल से स्वाध्याय के आने से एक बात तो बहुत श्योर है कि जो ज्ञान, एक बात समझ में आ गई है कि जो भी है वो सब कुछ आपका ज्ञान है। तो ज्ञान में अगर वृद्धि हो रही है सही मायने से, जैन दर्शन के हिसाब से, तो आप सही पाथ पे हो, सही दिशा में हो। फिर आप जो भी कर रहे हो इस मनुष्य भाव में, आप वो सही कर रहे हो। और एक बात सौरभ जी शेयर करूँगा कि आज सुबह एक आर्टिकल देख रहा था मैं, तो वो आर्टिकल इतना अच्छा था, उसमें लिखा था कि जब व्यक्ति, अगर आप ग्रेवयार्ड के पास जाते हैं या आप शमशान में जाते हैं, तो वहाँ आपको इतने सारे अनबरीड थॉट्स मिलेंगे। वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको पता चलेगा कि इतनी सारी चीज़ें हम करना चाहते थे जीवन में जो नहीं कर पाए। हर चीज़, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे, और उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि कोई कहेगा कि, मतलब जो टॉप 5 चीज़ें निकली थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कहेगी कि मुझे पैसा कमाना था, जो इम्पोर्टेंट था लाइफ में। तो आज ही वो पढ़ा, तो सुबह-सुबह देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम जो जिन दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट इस साल और आने वाले कई साल तक हमारा जो भाव मिला है, हम उसको शायद सार्थक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जहाँ पे सब लोग जो है, उन सबको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बिकॉज़ आप लोग की वजह से ही स्वाध्याय हो पा रहा है। कुंजन तो आई थिंक मल्टीपल प्लेसेस में उनको देखता हूँ। अ, हम लोग परमागम ऑनर्स भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी रहते हैं वो। प्रेरित, प्रीतेश, सौरभ, आई थिंक एवरीवन ओवर हियर, और खासकर फिर आप तो है ही जो हमको जोड़ के रखे हुए हैं। तो सबको ही दिल से बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं तो हमारी जब तक क्लास लगेगी ना, मैं आप लोगों से हर साल ऐसे ही पूछूंगा, हाउ वाज द लास्ट ईयर, व्हाट यू डिड, व्हाट आर द अचीवमेंट्स। देखिए, मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि आप लोगों को लौकिक अचीवमेंट मिले, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा खुशी होगी कि आप लोग जब कहें कि हम स्वाध्याय में आगे बढ़े। मैंने अपनी सोच बहुत फिक्स कर रखी है। मैं आप लोगों से पता क्यों बात कर पाता हूँ मैं, क्योंकि आप सब लोग मेरी सोच के क्राइटेरिया में आते हैं। मेरा संपर्क उन लोगों से बहुत कम है जो स्वाध्यायी नहीं है। बहुत कम इन द सेंस कि कोई चीज़ में बात होती होगी तो होती होगी, बाकी ऐसी बात नहीं होती। लाइफ़ का एक एक टारगेट, मतलब एक लाइफ़ का क्राइटेरिया सेट है कि मैं उन लोगों के संपर्क में आऊँगा या उनको ही आने दूँगा जो स्वाध्यायी हैं, जो जिनदेव की, जिन धर्म की महिमा आती है, समझना चाहते हैं। तो एक मेरे उदय ने भी वैसे ही काम किया कि सब लोग, अधिकतर लोग मेरे सराउंडिंग वैसे ही रहते हैं। कारण क्या कि जिनागम पढ़ने से एक बात बहुत क्लियर हुई
कि कुछ नहीं होने वाला, आप अरबों रुपए कमाओ, सारा संसार आपकी बहुत प्रशंसा करे और आप कोई लौकिक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करो। नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। कई सारे हम ऐसे इंसिडेंट्स अभी देखे भी हमने। रिसेंटली बताऊं मैं, रोहन जी अपने एक जैनी थे, कौन थे, तो वो काफी बड़ी पार्टी थी वो। एक लड़का है उनका, लड़का है मतलब था, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, सराफा में रात को चलते ही सराफा अपने 12 बजे तक, तो कुछ कोई खा रहे थे, कचौड़ी पकौड़ी कुछ खा रहे होंगे, अचानक एक हाथ में दर्द हुआ बहुत ज्यादा। तो समझ में आ गया कि भाई ये दर्द ना अटैक का है। अस्पताल ले ही नहीं जा पाए, लेकिन बीच में ही उनकी डेथ हो गई। तो वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो एक लड़का था, करीब 300-500 करोड़ की पार्टी थे वो, जाने माने थे। तो जो सुना रहे थे, मैं तो नहीं जानता था उनको, लेकिन जो सुना रहे थे मुझे, वो मेरे पास आए थे, तो ऐसे बैठे थे। तो बोले सौरभ जी, कोई कोई सार नहीं लगता, और मुझे तो सारभूत वस्तु एक जनागम ही लगती है। क्योंकि देखो अब क्या हुआ, वो जो लड़का था, इकलौता एकमात्र वारिस था पिताजी की सारी संपत्ति का। 300-400 करोड़ तो घोषित सरकार की नजर में वो व्यक्ति हैं, पार्टी है। तो ऐसे खैर एक एग्जाम्पल नहीं है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें कोई दुखी करने के लिए नहीं है। आचार्य योगेंदु देव की भाषाएं बोले तो मैं तो आत्म कल्याण की बात उन लोगों को बताऊंगा जो कि संसार से भयभीत हैं। संसार से डरना बहुत आवश्यक है। डरना कोई डिप्रेशन नहीं है, मतलब वो डिप्रेशन वाला डरना नहीं। डरना मतलब कि जैसे एक बेचारा गरीब आदमी क्यों दौड़ लगाता रहता है, वो पैसे क्यों कमाता रहता है, वो कहता है भाई मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा क्या, मैं अगर आज नहीं कमाऊंगा तो मैं आज ही नहीं खिला पाऊंगा, इसलिए मुझे दौड़ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हम खुद से प्रश्न करें, खुद को उत्तर दें कि अगर ये भव बीत गया तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अगर ये भव मेरा बीत गया तो मैं भव भव पछताऊंगा, और फिर अनंत काल तक दुख का घन छाएगा, अर्थात दुख ही दुख मेरे जीवन में रहने वाला है। तो ये हर साल का प्रारंभ एक अपने नए थॉट को हमारे साथ लाता है, और वो थॉट केवल हमारे लिए है। मतलब मैं हर साल, आज से नहीं, मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन स्मारक and I was studying, that time I was only 18 and 19 years old. You know, that time I also used to think कि यार एक साल और निकल गया। Now I am 19 years old. मैं जब दूसरों को देखता था कि वो 39-40 के होंगे आज मैं भी उसी उम्र पे हूँ। तो कभी कभी कुछ सपना सा लगता है कि यार अभी तो, थोड़े समय पहले तो मैं आई वॉज स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, 20 साल निकल गए उस बात को, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है ये। इस बात से मुझे एक निर्णय और हुआ है कि जैसे आई हैव पास्ड माय 20 years, अब आने वाले जो 20 साल हैं, ये केवल मेरे लिए नहीं, एक ये हम सब के लिए, क्योंकि हम सब लोग करीब करीब 2-3 साल के डिफरेंस से हम लोग सब बराबर बराबर के हैं। मैं 40 का हूँ, कोई आप 37 के होगे, कोई 35 के होगे, कोई 39 के। हम 2-4-5 साल के गैप से सब लोग सेम उम्र के हैं। आने वाले 20 साल हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो। अगर हम आत्म कल्याण के लिए उस समय को लगाते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरे महत्वपूर्ण ऐसे होने वाले हैं कि अभी तक हम, हमारी जो शरीर है ना, फुल एनर्जी हमारे शरीर में, काम करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे डॉक्टर प्रीतेश हैं हमारी क्लास में, वो जानते हैं आफ्टर 40-45 बॉडी के जो अंग हैं वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग, उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है, खाने की हो, चाहे चलने की हो, और चीजों की हो। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 20 साल हमने दे दी ना सेटल होने में, 20 साल हमने दे दी ना पर को। अब आने वाले 20 साल एक्चुअली में पूरे 20 साल हमारे पास नहीं है, आने वाले पूरे 20 साल, उसमें से थोड़े से साल हमारे पास है, क्योंकि शरीर प्रतिकूल होगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा खाना खाता है, कोई प्रतिकूलता नहीं है तो स्वस्थ रहेगा। उम्र बढ़ेगी, पर्याय बढ़ेगी तो वो तो अपना असर दिखाने वाली है, वो राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, कोई भी हो।
मेरे कहने का तात्पर्य कि हम पिछले साल जिस स्वाध्याय के लेवल पे थे, ऑफ कोर्स ये इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी कि आप लोग हर साल स्वाध्याय के लेवल पे आगे बढ़ जाते हैं, और इट इज द मैटर ऑफ मेंटल पीस स्पेशली फॉर मी कि आप लोगों के जो अब उत्तर देने का जो लॉजिक, शब्दावली और आपकी विचारधारा सब लोगों की बहुत अच्छे लेवल की हो गई। क्योंकि मैं एज अ टीचर, हम लोग ऐसे सब मित्र हैं, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, तो टीचर स्टूडेंट की तरह देखूं तो आप सब लोगों की एक ग्रेस्पिंग पावर, एक समझने की आपकी रुचि, मतलब मुझे तो सबसे अच्छा पार्ट आप लोगों में ये लगता है कि आप सब लोग रेगुलर आते हैं, कभी कोई गैप नहीं होता किसी प्रकार का, और उत्साह पूर्वक हर बार आते हैं। तो मैं इस साल जो प्रारंभ हुआ है इसमें मैं फिर से अपेक्षा करूंगा कि इतने वर्षों तक आप लोग कंटिन्यू इस क्लास में रहे, और ग्रोथ रही आप लोगों की। आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि अब हमारी कंपाउंडिंग ग्रोथ और बढ़े। लौकिक की तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं ही हैं, लेकिन साथ में ज्यादा शुभकामनाएं और इच्छा मेरी ये है कि हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी, आप लोग तो हैं ही, आत्म कल्याण के मार्ग पर हम चलें। क्योंकि लौकिक उपलब्धि आप कितनी बड़ी प्राप्त कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। आइंस्टीन भले ही इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो उससे क्या हुआ, गए ना आखिरकार। रामानुजन थे जो, रामानुजन तो उनसे ही बड़े वैज्ञानिक थे, वो भी गए, वो 32 साल की उम्र में चले गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साल निकलते रहेंगे। हम अगर ग्रोथ का अगर अपना चार्ट बनाए तो हमारा चार्ट आध्यात्मिक ग्रोथ का होना चाहिए कि हम कितने संयम के मार्ग में चले, हमने कितने आत्म कल्याण के लिए अपने आप को प्रेरित किया, हम कितने डरे संसार से, हम कितने संसार से भयभीत हुए। क्योंकि संसार से भयभीत ना हो तो फिर तो हमें लौकिक उपलब्धियों में आनंद आता रहता है। अच्छा, और दूसरी बात बताता हूँ मैं, हमें क्या होता है कि हम अपने आसपास के परिकर में जीते हैं। परिकर मतलब हम अपने आसपास की माहौल में जीते हैं, तो हमें समझ नहीं आता दुनिया इसके अलावा भी कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल कि जो जहाँ रहता है उसे क्या लगता है, बस यही लोग सबसे अमीर हैं, यही लोग सबसे अच्छे हैं, सुखी हैं। तो हमें भी क्या लगता है, हम सुखी हैं, हम सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल सुख जो अध्यात्म पड़ता है ना, एक्चुअल सुख उसके पास आता है। मेंटल पीस इज इम्पोर्टेंट थिंग। एक आपके यूएस में सिलिकॉन वैली में एक इन्वेस्टर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नवल रविकांत का नाम सुना है आप लोगों ने? इंडियन है नवल रविकांत, सुना है किसी ने नवल रविकांत का नाम? नहीं सौरभ जी। अच्छा, नहीं सुना? अरे फेमस है वो तो, मतलब फेमस इंडियन है जो आपके यहाँ बिलीनियर है वो एक्चुअली में। और वो बिलीनियर, मतलब वो बिलीनियर है, ऐसे तो कई इंडियन बिलीनियर हैं वहाँ, लेकिन वो जो बोलते हैं, उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि आप मुझे मेरा सारा पैसा छीन लो, और सारा पैसा छीन के आप मुझे लंदन की किसी स्ट्रीट में छोड़ दो जहां मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। मैं अपने 5 या 10 साल में मेरे पास जितना पैसा था ना, मैं फिर से उतना कमा के आपको बता दूंगा। तो उनने क्या कहा, उनने ये कहा कि व्हाट आई हैव अर्न इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज। वो उनका पूरा मैक्सिमम टाइम पढ़ने में जाता है। इन्वेस्टर हैं और उनका पूरा टाइम पढ़ने में जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं, नॉलेज इज माई कैपिटल। मैं जो दिमाग में मैंने जो कैपिटल बिल्टअप की है ना, दैट इज माई वेल्थ। और वो वेल्थ मेरी क्रिएट हो गई तो बाहर की वेल्थ तो मेरे पास अपने आप आ रही है, आएगी। वो फेमस इसलिए है क्योंकि ट्विटर जब चालू हुआ था तो ट्विटर के एंजल इन्वेस्टर थे ये, आपके ट्विटर के, ओला के, सॉरी उबेर के, इनके ये एंजल इन्वेस्टर थे ये। इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी में उसमें उनके इक्विटी खरीदी थी। तो वो बोलते हैं कि नॉलेज, तो जब लौकिक लोग ऐसा बोलते हैं तो हम भी यही समझ लें कि नॉलेज इज पावर। लौकिक में देखिए आप लोग खूब पढ़िए, बढ़िया है, आप उपन्यास पढ़िए, अपनी फील्ड का पढ़िए, लेकिन यहाँ मेरा नॉलेज से तात्पर्य मात्र मात्र स्वाध्याय से है। अब नवल रविकांत बोलता है कि आप मुझे किसी भी स्ट्रीट में छोड़ दीजिए लंदन की, मैं उतना पैसा कमा के बता दूंगा। इस बात को मैं आध्यात्मिक तौर पे ऐसे बोलता हूँ कि आप मुझे
किसी भी स्थान पे छोड़ दीजिए, मैं आपको खुश रह के बता दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई स्थान से मेरे सुखी दुखी होने का संबंध नहीं है। मेरा सुखी दुखी होने का संबंध तो मेरी मानसिक ज्ञान के लेवल से है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उतनी बात करता है जितने उसका ज्ञान का लेवल होता है, ये एकदम पक्की बात है। प्रत्येक व्यक्ति उतनी बात करता है, जिसको जितना स्वाध्याय है उतना वैसा समझ आएगी उसमें, उतनी समझदारी बढ़ेगी, बात भी वो वैसी करेगा। तो इसलिए नव वर्ष पर मेरी यही कामना है कि जैसे आप लोगों ने अभी तक इतनी ग्रोथ की है और इतनी उन्नति की है आध्यात्मिक रूप से, वो आने वाले समय में कंटिन्यू बनी रहे हमारी। और मेरा आप लोगों के लिए सदैव साथ रहेगा स्वाध्याय करने में, समझने में, समझाने में। चलेगा हमारा ऐसे ही स्वाध्याय जीवन के अंत तक। अब किसके जीवन का अंत कब है मुझे तो पता नहीं, आपको भी नहीं पता कि मेरा कब है, आपका कब है, लेकिन till end of our life we have promised to each other that we will do Swadhyay, keeping in view only for just self realization and salvation. तो इस तरह से नववर्ष के दिन मैंने यहाँ जो क्लास ली थी, वहां मैंने जो बताया है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ मैंने सृष्टिकर्तावाद का निराकरण लिया था। स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि भाई सृष्टि जो है वो किसने बनाई, और 5वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के में क्या लिखा हुआ है, तो वो सृष्टिकर्तावाद लिया। फिर टोडरमल जी ने बताया कि भाई सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, ये स्वतः बनी है। फिर काल चक्र का परिवर्तन लिया कि भाई वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, और उसके बाद इस संसार में आके हमें क्या करना जब वस्तु की व्यवस्था हम समझ जाए, तो वो बताया था। इस तरह से करीब 1.5-2 घंटे का स्वाध्याय था। सारे स्टूडेंट थे यहाँ, काफी अच्छा लगा उन लोगों को। हाँ, तो आप लोगों को कुछ कहना तो कह सकते हैं कि आपका पुराने साल में स्वाध्याय में क्या ग्रोथ रही, कैसी रही? क्योंकि यहाँ भी हम एक फीडबैक सेशन हमेशा करते हैं, तो वही परंपरा फिर मैं आप लोगों की क्लास में भी हमेशा लेता हूँ। तो बताइए प्रीतेश जी, पिछले साल का हमारा स्वाध्याय में आपका पर्सनली क्या ग्रोथ रही, और आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी जरूर सौरभ जी। जो जैसे आपने कहा 2009 से आपके साथ हुई, आपसे सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, चल रहा है। मेरा स्वाध्याय पिछले साल जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। आपके साथ जुड़े रहने से और वहाँ पे पाठशाला में जुड़े रहने से, स्वाध्याय सेशन से, तो एक 2-3 ग्रंथ साथ में चलते हैं, वो चलता है। और थोड़ा बहुत मैं कोई व्याख्यान सुन लेता हूँ, कोई पढ़ लेता हूँ, सूत्र का अर्थ कर लेता हूँ। वैसे ही मेरा स्वाध्याय, मतलब मुझे ये पता चल गया है कि मैं बहुत आभारी हूँ वहाँ के रिचमंड का संघ का, कि मुझे उनको वो पढ़ाने का मौका देते हैं तो मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। तो उसी कारणवश, क्योंकि कोविड में हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया था, कम नहीं हुआ, तो हमको ज्यादा वहां पे रहना पड़ा। तो जितना मेरा पहले स्वाध्याय होता था उससे कम हुआ, बट चालू रहा। और इस क्लास से जुड़े रहने से कभी भी रियलाइजेशन होता है कि अरे इस वीक में तो कुछ नहीं किया, तो करना चाहिए। और लास्ट जो समयसार ग्रंथ की शुरू की, समयसार ग्रंथ का लास्ट वीक हमने जो समरी की, आखिरी 2021 में 21 में हमने जो समरी सेशन किया, एंड में टेस्ट की, उसमें बहुत अच्छा लगा। इतना मजा आया, समयसार की महानता एक रियलाइजेशन हुआ फिर से। और बहुत बहुत खुश हूँ कि उस ग्रंथ का फाइनली, कब से मुझे इंतजार था कि उसका स्वाध्याय करना है, बट खुद की लेवल तैयार करनी है कि उस ग्रंथ को पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ। और आपने हमको प्रोत्साहन दिया और पढ़ाया, तो सीखने का मौका मिल रहा है और समझने का मौका मिल रहा है। अभी तो शुरुआत है, बहुत दूर जाना है, बट कोशिश करते रहेंगे। और आप है, जैसे रोहन ने बताया, प्रेरित है, हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं, अलग अलग माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं, स्थितिकरण करते रहते हैं हमारा। तो वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, टू बी पार्ट ऑफ, टू बी फ्रेंड्स एंड टू बी द स्टूडेंट हियर। सो थैंक यू। मेरा न्यू ईयर तो फ्लाइट में गया, 31st को नाइट में फ्लाइट में था और यहाँ पे पहुंचा। फ्लाइट में तो इंडिया, हाँ, मतलब you departed from there in 2021 and reached 2022. करेक्ट।
नहीं हमारे प्रीतेश जी जो हैं, मैं देख रहा हूँ जब से, मतलब इतना तो मेरे कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं नहीं, जो थे वो तो कॉलेज में छूट गए, पुराने छूट गए, लेकिन एक आप सब लोगों से जो बॉन्डिंग हुई है ना, तो वो मतलब इतने पक्के दोस्त तो कभी किसी के बन ही नहीं सकते, फ्रेंड कम साथ में। तो ऐसे ही प्रीतेश जी का बड़ा स्नेह रहा है स्टार्टिंग से मुझ पर, और हमारी रेगुलर बात होती रहती है। हम लोग एक दूसरे के घर आए हुए भी हैं, और मैंने प्रीतेश जी का कभी उत्साह में कमी नहीं देखी। जब हम 2 लोग आते थे, टोटल 3 लोग रहते थे, मैं, प्रेरित जी, प्रीतेश जी, तब भी ये लोग आते थे और उत्साह से पढ़ते थे। उसका रिजल्ट है कि आज हमारे प्रीतेश जी पढ़ा भी पा रहे हैं वहाँ लोगों को, और खुद भी समझते हैं, हमेशा ओपन माइंडेड रहा है उनका कि हमें बस, मुझे तो केवल एक जनागम समझना है, कैसे भी करके समझना है। तो बहुत अच्छा उत्साह रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में जिस पंचम काल में पूरी भोग विलासिता भरी संस्कृतियां हैं, लोगों के माइंडसेट वही हैं, वहाँ आप लोग young हैं, वहाँ प्रॉस्परस हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं, और फिर भी आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा, गुड। हाँ, और बताइए आप कुंजन जी। क्या ग्रोथ रही स्वाध्याय में लास्ट ईयर? सौरभ जी, दोनों ग्रंथ समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने शुरू किए, जैसे हमने मतलब 2 क्लास में भी, लेकिन मैं पर्सनली भी अपने लेवल पे भी मैं थोड़े आगे पढ़ते जा रहा हूँ, ताकि स्पेशली इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने तीसरे अधिकार तक पढ़ा। और इसके साथ मैंने थोड़ा आजकल अगेन प्रथमानुयोग पे थोड़ा सुनना भी शुरू किया है, और थोड़े ऐसे ही पुराण पढ़ना चालू किए। जब मैंने पांचवें पुराण का थोड़ा पार्श्वनाथ की कथा है, मैंने अभी जस्ट लास्ट क्लास में अभी थोड़ी पढ़ी, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा इन द सेंस, बहुत कुछ ऐसे जाना कि नॉलेज, ज्ञान जो होता है वो बहुत एक स्लो प्रोसेस है, और एवरीथिंग टेक्स टाइम। और ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर के भी इतने भव हुए हैं, और हर भव में उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा ही की है, और वो उसके बहुत ही उसमें भी एंड में भी जैसे जैसे पार्श्वनाथ भगवान की मैंने सुनी, उसके लास्ट के 10 भाव के बारे में जब पढ़े, तो वो 10 में से पहले के 5-6 भाव जो थे, वो तो उनके एकदम एक में वो मुनिराज थे, एक में सर्वात सिद्धि में भी थे, एक में वो 12वें स्वर्ग में थे। तो उस स्वर्ग में भी उन्होंने बहुत 33 कौड़ी सागर की आयु पूर्ण की, लेकिन वहां पे भी जितना संयम हो सका उतने से किया। तो उससे थोड़ा एक पेशेंस फैक्टर भी आता है कि हमें भी धर्म में बहुत ही शांति से और संयम से, पेशेंस से आगे का भी पाथ जब सोचता हूँ, मैं ये सोचता था कि कब होगा, मतलब एक आकुलता जो होती है या एक्साइटमेंट होता है कि इमीडिएटली हो और इमीडिएटली रिजल्ट मिले, वो होना अभी अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि it's not gonna happen overnight, कि it's not gonna happen in a year, और हम धीरे 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 ही अपने ज्ञान को बढ़ाए। वेरी गुड। कुंजन जी भी जब से अपनी क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, रेगुलर क्लास में आना, सबको मटेरियल भेजना, मंगलाचरण आदि करना, और आपसे भी महीने 2 महीने में एक आध बार बात होती है, तो उसमें आपके स्वाध्याय की ग्रोथ दिखती है, और वो आपके शब्दों में रेगुलर क्लास के माध्यम से आपके सबके सामने आती भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना पर्सनल स्वाध्याय भी कर रहे हैं, क्लास में तो रेगुलर आ ही रहे हैं। समय सार हमारा जो ग्रंथ चल रहा है, वो तो देखो अशरीरी बनाने का शास्त्र है। कई सारी सभाओं में तो 19-19 बार समय सार चला। तो आप सोच सकते हैं कि एक किताब ऐसी है जिसे किसी ने 100 बार पढ़ा हो, तो 19 बार बता पाया उसको वो। तो कितना रहस्य और कितना माल होगा उसमें। तो ये एकदम सही बात है कि हम सबको समय सार पढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, चूंकि मैं समय सार पहले पढ़ चुका हूँ, जब समय सार प्रोजेक्ट बनाया था उस समय बहुत पढ़ा था, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना था, वो काफी सफल भी रहा।
फिर अभी पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है पढ़ा ही तो नहीं, इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक। अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है इसमें। अब प्रथमानी योग आपने पढ़ना चालू किया है तो बहुत अच्छा है। प्रथमानी योग से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक हमें बहुत प्रेरणा मिलती है प्रथमानी योग से कि कुछ भी ओवरनाइट होने वाला नहीं है। हमें हर चीज की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। एंड इट में टेक 1 भव, 2 भव, 3 भव एंड सो मेनी। 10-10 भव तो लग गए जो हमारे और हमने भी प्रथमानी योग की, अपन लोगों ने जो केवल ज्ञान टीवी पे सीरीज बनाई, वो सीरीज भी बहुत पॉपुलर हो रही है, सब लोग उसको देख रहे हैं। इवन जिन भगवान का कल्याणक होता है तो उन भगवान का वो अपनी तीर्थंकर की वीडियो ही फॉरवर्ड होती है। प्रथमानी योग का मैटर है वो, उसमें अपन लोग जो क्वालिटी का ध्यान रखा, कंटेंट जो पूरा कंटेंट 10-15 मिनट में दिया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं, तो अब वो बनी है तो लोगों को पसंद बहुत आ रहा है। तो प्रथमानी योग इम्पैक्ट, प्रथमानी योग का इम्पैक्ट तो रहता है और आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा विषय है प्रथमानी योग। मतलब बचपन से मुझे ना टीवी देखना बहुत पसंद है, तो टीवी में ना मुझे कहानियां बहुत पसंद है बचपन से। तो वो मैंने जब जिनागम में अपना उपयोग ट्रांसफॉर्म किया, तो मैंने उसका रिजल्ट है ना कि मैं सारे पुराण पढ़ डाले। मतलब मेरे पास आदि पुराण पड़ा हुआ है, पद्म पुराण पड़ा हुआ है। ये पुराण मैं अभी भी पढ़ता हूँ और वो इतनी मतलब इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं कि मैं 10-10 दिन में एक पुराण पढ़ लेता हूँ। वो कैसे पढ़ता हूँ कि वो शाम को 6 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, 5 बजे से रात को 12 बजे तक सोता हूँ। सुबह उठा, नहाया, 5 बजे से सुबह चालू, फिर पढ़ना 10 बजे तक फिर पढ़ लेता हूँ। तो ऑफ कोर्स प्रथमानी योग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी जो है आप लोग भी व्यक्तिगत स्वाध्याय में ले सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा क्रिएट होगा। हमारे कुंदन जी ने ऐसा प्रथमानी योग का भी उनका अपडेट दिया कि प्रथमानी योग पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। साथ में और दूसरे स्वाध्याय भी कर रहे हैं, समय निकाला। तो आपका इस तरह से 2021 आपका स्वाध्याय में गया। प्रियंका जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा स्वाध्याय के रिगार्डिंग 2019 में? जय जिनेन्द्र सौरभ जी। जी। मेरा स्वाध्याय वही जैसे जितना एक्सपेक्ट करती हूँ उतना नहीं हो पाता है, बट फिर भी जैसे इस क्लास से जुड़ने के बाद आई कैन टेल, मतलब मेरे में खुद में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रितेश भैया, प्रेरित भैया एंड यू। मैं जब यूएस में थी 2008 की बात है, तब 2008 सॉरी 2010 हाँ 10 11 13 2013 में मैं जब रिचमंड आई थी 12-13 में, तब मेरे को प्रितेश भैया ने इस क्लास से इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से मैं ऑन एंड ऑफ जुड़ी हूँ। मैं आप लोग सबके जितना मतलब मुझसे बहुत ही कम स्वाध्याय हो पाता है पर्सनली तो, बट फिर भी मैं कैसे भी ये क्लास छोड़ना नहीं चाहती। मैं ये क्लास के जैसे अभी टाइम में कभी कभी क्लास हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है, कभी आधा सुनती हूँ आधा नहीं भी सुनती हूँ, ऐसा भी चलता है। फिर भी मन नहीं करता कि पूरा उसको ड्रॉप कर दूं। इतना अच्छा भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार का ये स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन मेरी कमी की वजह से मैंने मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ मेरे को जो कि पढ़ना चाहिए। बट और एक अभी मैं परमागम से भी जुड़ी हूँ, तो उसकी भी पढ़ाई थोड़ी बहुत चलती है। तो उसके मतलब अभी वो तो कैसे उसके प्रॉपर एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसको पढ़ना ही पड़ता है जैसे भी हो, चाहे टाइम निकाल के उसको करना ही पड़ता है। रात में जब डेडलाइन आती है तो फिर रात में जग के करती हूँ। लेकिन हाँ ये तो बहुत ज्यादा स्वाध्याय तो नहीं हो पाता, लेकिन ये दो क्लासेस में मिस नहीं करना चाहती। एटलीस्ट सुनने से भी चीजों का थोड़ा पता चलता है और अपने में बहुत चेंजेस, आई मीन आई फाउंड लॉट ऑफ चेंजेस इन माय सेल्फ। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए प्रियंका जी ने एक अच्छी बात ये बताई कि मैं भले आधी क्लास ज्वाइन करूं लेकिन आधी कर लेती हूँ। तो मैं इसके लिए एक सेंटेंस बोलता हूँ सब लोगों को कि आप कनेक्ट होके रहिए ना, करेक्ट तो कभी भी हो जाएंगे। आप कनेक्ट ही नहीं होंगे तो करेक्ट कैसे होंगे? तो अगर हर बार हम ऐसे ही सोचने लगे कि अभी तो आज समय नहीं है, जब पूरा समय होगा तब क्लास ज्वाइन करूंगी मैं, तो पूरा समय तो किसी के पास होता नहीं है, सब व्यस्त हैं। मतलब कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि क्या करें, हम लोग कर्म भूमि में है ना, हम चाहें भी तो फ्री नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे शरीर की, हमारे परिवार की,
माता पिता की, बच्चों की, जॉब की। तो आप समय निकालते हैं और आप कनेक्ट रहते हैं, इसलिए आप धीरे धीरे करेक्ट भी होते रहते हैं। और प्रियंका जी का भी स्वाध्याय रेगुलर ग्रोथ पे है, जब से जुड़े हैं तब से रेगुलर ग्रोथ पे है। और मेरी यही शुभकामना है कि 2022 खत्म हो और फिर जब मैं 2023 में आप लोगों से पूछूं कि आपका रिपोर्ट कार्ड ग्रोथ क्या है, तो वो पॉजिटिव, इससे भी ज्यादा और पॉजिटिव मिले, ऐसी मेरी भावना। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। हाँ। रोहन जी आप बताइए, आपका 2021 स्वाध्याय में कैसा रहा? सौरभ जी, रत्नाकन शावकाचार्य जी का स्वाध्याय पूरे वर्ष चलता रहा। ऑलमोस्ट अब 7th अधिकार पे आ गए हैं। विपिन जी शास्त्री के साथ में मैंने डेली ज्वाइन किया उसको, रात को 9:30 के आसपास ऑलमोस्ट डेली ज्वाइन किया। तो एक वो उस तरफ काफी अच्छा रहा कि शास्त्र पढ़ने में आया। परमागम ऑनर्स के साथ में पहले 2 सेमेस्टर अब खत्म होने आ रहे हैं। सेकंड में थोड़ा ऑन एंड ऑफ था बिकॉज ऑफ द वर्क वाइज शेड्यूल, बट उसमें एटलीस्ट ये हुआ कि वापस से बाल बोध, वितराग विज्ञान, तत्व ज्ञान, इनकी चर्चा चली। तो वो चीजें जो कॉन्सेप्ट थे, जो कॉन्सेप्टलिटी थी, जो जहाँ पे हम याद करते हैं लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान की वजह से फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो निरंतर उसकी पढ़ते रहो, पढ़ने से और ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। तो वो चलता रहा। और फिर आपके साथ स्वाध्याय में तो हमेशा एक प्रकार का एक लगाव भी है आपके साथ में, क्योंकि आप जब बताते हैं चीजों को तो आप, ऑफ कोर्स हम पहले 6 ढाला कंप्लीट हुई आपके साथ में, पिछले 3 या 4 साल से मैं आपके साथ हूँ। तो जितना भी 6 ढाला का आपके साथ में, जितनी भी ढाल पढ़ पाए उतना सीखने को मिला। और अब तो लाइफ चेंजिंग ग्रंथ हम पढ़ ही रहे हैं साथ में। तो जैसा प्रीतेश ने बताया कि जो लास्ट सेशन था मेरा थोड़ा उस तरफ रिवीजन जो था वो कम हुआ, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने आपको सुना, प्रेरित को सुना, प्रीतेश को सुना, बीजल जी ने बहुत अच्छा बताया, तो जब वो सुना तो मैंने उस वीडियो को फिर वापस से सुनने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अनटच रह गए थे। तो बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग मोड मैंने फिर से सुना। तो जो मैंने आपने कहा था लास्ट टाइम कि सारे अपने, मैंने एक चीज का अपने रिजोल्यूशन लिया था लास्ट क्लास में, जब आपने कहा था कि सुक्तियों को पढ़िए, आप बार बार उनको रिवाइज करिए, तो क्या वो नहीं पढ़ते तो फिर वो विचार नहीं आते हैं। और आपने एक और बात कही थी कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी को, जैसे आपने पहला श्लोक पढ़ा, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इससे क्या बात हो रही है, तो आपका एक फ्लो बन जाता है। और यही बात प्रेरित ने भी अच्छे से कही थी कि मैंने एक कहानी की तरह इसको पढ़ा। तो सबके साथ पढ़ने में एक बात ये अच्छी होती है कि आपका मल्टी डायमेंशनल फोकस बनता है कि कैसे चीजों की तरफ बढ़ना है और कैसे अपने स्वाध्याय को और अच्छा करना है, मतलब ज्ञान में वृद्धि करना है। तो मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो चीजें पढ़ी है, जैसे शावकाचार्य जी पढ़ी है, तो वो भी जितना अपने जीवन में आ पाए वैसे आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे समय सार के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो द्रव्य से भी अपने अंदर वो भाव आए और हम आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका भी स्वाध्याय का लेवल बहुत अच्छा हो गया है और रेगुलर रोहन जी पढ़ते हैं, कभी कभी रोहन जी से भी चर्चा होती है, तो उसमें आपके स्वाध्याय की बात हमारी होती है। मतलब मेरी जिनसे भी चर्चा होती है स्वाध्याय की चर्चा तो उसमें आती है। रीजन क्या है कि वी हैव कनेक्टेड ओनली विद स्वाध्याय, तो वो चर्चा तो ऑलवेज आएगी। और रही बात कितना पढ़ें, कब पढ़ें, तो ये तो एंडलेस है। एक समय सार कोई पूरा जीवन पढ़ा जा सकता है, फिर अन्य ग्रंथ की तो बात ही क्या करें। तो हम वैसा समझें और रोहन एक जी चीज आप और और कहना आगे चाहूंगा मैं, स्वाध्याय करते रहिए। एक बात और शेयर करना चाहूंगा मैं। अब क्योंकि हम 3-4 साल से पिछले स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, तो अब एक विचार तो जरूर आने लगा है। मतलब मैंने अपना खुद का एक चेकलिस्ट टाइप पिछले साल से भी मैंने करा है, और मैं अब इस साल तो और फोकस करने वाला हूँ कि चेकलिस्ट टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब श्रावकाचार्य जी में 5 बातें आई, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि 5 पाप हमें नहीं करना है। तो कहाँ कहाँ पे वो चीजें भूल हो जाती है, कहाँ कहाँ पे वो चूक हो जाती है, तो मैं एक वो डॉट बनाना शुरू कर रहा हूँ आजकल एक पेज के अंदर की, 1 डॉट मतलब ये चूक हुई थी, 2 डॉट मतलब ये चूक हुई थी। तो कम से कम वो 30 रहे, या जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट उसका, कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं। और गलतियां हो रही है, गलतियां होती रहती है, और गलतियां होगी भी सही आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्वाध्याय से ये है कि पढ़ने के बाद में मैं अपने आप को एक, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं वापस से उस ट्रैक पे आऊं कि जो पढ़ा है वो जीवन में भी आए। नहीं तो वो ऐसे ही चला जाएगा तो फिर ये जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे स्वाध्याय से मिला है और मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ।
बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि हम इतना विचार करते हैं ना कि ऐसा कुछ ना हो जाए और we must aware about that, then definitely we are on the way of modification or rectification. तो वो फिर हम ऐसा सोचेंगे भी और अपनी लाइफ में हम ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे। होता है ये ग्रेजुअली चेंजेस। एक्चुअली में क्या होता है कि हम ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से भी करें ना तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। You cannot be millionaire overnight. You cannot study whole ग्रंथ overnight. ऐसे ही कोई ओवरनाइट आप में कोई चेंजेस आने वाले नहीं, इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा श्रद्धान दृढ़ होगा, श्रद्धान पक्का होगा, तत्व समझ में आएगा और बहिरंग में वैसे हमारे बदलाव होते जाएंगे। तो इस तरह से एक आप लोगों का हर साल में एक स्वाध्याय का रिपोर्ट कार्ड देता हूँ पूरे साल का। तो आप लोगों ने बढ़िया दिया और आई एम हैप्पी। कोई रह गया अभी? हाँ, कुंजन जी रह गए, सॉरी बीजल जी रह गए। कुंजन जी तो हो गए, बीजल जी और प्रीति जी। जय जिनेंद्र सौरभ जी और सभी को जय जिनेंद्र। सौरभ जी, पिछले साल हम लोग बहुत टाइम में ऐसे करती हूँ कि जितना भी टाइम मिलता है बीच बीच में हम लोग स्वाध्याय तो करते ही रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। तो मैंने पद्म पुराण सुनना चालू किया था, फिर आदि पुराण भी सुनते हैं हम लोग। आपके तो जो वीडियो होते हैं वो भी देखते हैं। फिर हम लोग ने परमागम ऑनर्स की क्लास लगाई है तो उसका भी चलता रहता है, फिर ये क्लास का भी करते हैं। और ये सब करके बदलाव भी आता है सौरभ जी। जैसे हम लोग ने पानी छान के पीना और पानी को पूरा प्रासुक करके ही पीते हैं तो वो चालू कर दिया। फिर हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो अभिषेक आई मीन एवरी वीक जाते ही एटलीस्ट इतना तो करते ही है। तो अभिषेक करके फिर पूरा पूजा करके रोज सुबह को हम लोग पूजा भी करते हैं। फिर हम लोग ने रात्रि भोजन ट्राई करते हैं कि यहाँ पे दिन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इतना जल्दी नहीं लेकिन एटलीस्ट 6:30 तक हम लोग खा लेते हैं। तो वो भी एक चेंज आया और जितना हो सकता है ट्राई करते हैं। मैं तो कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, जब भी खाना भी बनाते या कुछ भी काम करते कुछ ना कुछ मेरा चालू ही रहता है, तो वैसे ट्राई करते हैं। वेरी गुड। एक क्या बोलते हैं, बीजल जी की बात बहुत अच्छी सामने आई कि आई हैव स्टार्टेड पानी छानना और प्रासुक जल पीना और कोशिश कर रहे हैं रात्रि भोजन की। क्योंकि मैं इन क्रियाओं के लिए कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। रीजन क्या है कि स्टार्टिंग से एक एज अ टीचर मेरी एक एक्सपीरियंस रहा है इस बात का कि डोंट पुश एनीवन टू कंप्लीट एनी एक्शन बट educate them, give them the core values of that particular topic, ऑटोमेटिकली वो चेंज जाएंगे। तो ये केवल एक आपका फीडबैक नहीं है। इन माय इंदौर क्लास और इन माय अनदर क्लास, many students, many my friends and people, they just give me feedback. I have started this thing, I have started this thing. ये रात को खाना बंद कर दिया। तो मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने कभी उनको इस बारे में बोला ही नहीं। रीजन क्या है, बड़े सेंसिटिव और पर्सनल मैटर होते हैं। तो बढ़िया, एक तत्व ज्ञान जो पढ़ा तो उसका एक बाहर में क्रियान्वयन भी आपने चालू किया। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं कि इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मंदिर जाने का पार्ट आपने बहुत अच्छा बताया। खैर सभी लोग जाते हैं, मुझे पता है, हर हफ्ते जाते हैं वहाँ, लेकिन आपने प्रक्षाल करने का और पूजन करने का और पानी छानने का ये सब बताया, तो वेरी गुड। और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले साल में भी जो चल रहा है हमारा चलेगा, इसमें भी इसी तरह से और ग्रो करेंगे और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जी सौरभ जी। अभी हो गए समय जी, बढ़िया। प्रीति जी हैं अभी। प्रीति जी, आपने अपना एक साल कैसा स्वाध्याय में गया, आपको बताइए। अगले 2020 के कंपैरिजन में मेरा इस साल में जैन तत्वज्ञान का अभ्यास थोड़ा कम रहा, क्योंकि मैं संस्कृत भाषा सीखने का प्रयत्न कर रही थी, तो वही चालू था। तो अभी जब मैं पढ़ती हूँ कुछ भी, तो
तो समझ में आता है, वैसा लगता है। अभी उसमें से अपने व्यवहार में कितना उतरता है पता नहीं, मगर कोशिश तो करते हैं जरूर। तो वो थोड़ा आगे बढ़ा है, थोड़ा पढ़ना थोड़ा हुआ है। जो पहले पहले पढ़ा था, उसमें फिर से एक बार झांक के, फिर से एक बार उसका अभ्यास करके उसमें गहराई प्राप्त होती है थोड़ी, तो अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छा लगता है जो मन को, वो भी हमें अच्छा लगता है कि बाबा कहीं तो अपने पूर्व कर्मों की वजह से कुछ सही काम हुआ तो अच्छा लगता है हमें। तो बस वही अभी ये इस साल में, इस वर्ष में ज्यादा करने की उम्मीद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रीति जी क्लास में आती हैं, कभी कभी एब्सेंट रहती हैं, लेकिन हाँ, प्रीति जी जब से ज्वाइन किया है करना चालू, तब से टच में रहती है हम सब लोग के। सुनती भी हैं, आंसर अपन कोई क्वेश्चन करें तो आंसर भी देती है। तो बढ़िया, आप संस्कृत का भी स्वाध्याय संस्कृत की स्टडी कर रहे हैं स्वाध्याय में, ताकि वो सपोर्ट करे। वेरी गुड। वैसे आजकल संस्कृत के अनुवाद हो चुके हैं, पहले केवल संस्कृत में था, तो मैक्सिमम ग्रंथ हमारे हिंदी में अनुवादित हो चुके हैं। तो एक उनसे भी हमें काफी हेल्प मिलती है, और अगर हमारे पास समय और बुद्धि है संस्कृत को सीखने की, तो डेफिनेटली हमें वो भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से एक हमारा नववर्ष का एक मुझे आप लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेना था, एक समझना था। तो सब लोगों की काफी अच्छी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिख रही है, और हम कोशिश करेंगे कि 2022 भी हमारा और अच्छा जाए। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार पर चल रही है। पहले अधिकार में हम लोगों ने, जो टोडरमल जी ने देखा कि भाई अपनी बात कर रहे थे वो, कि भी मैंने ये शास्त्र क्यों लिखा, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध हैं, हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और पूर्व संस्कार से व होनहार से जैन शास्त्रों का अध्ययन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो न्याय के ग्रंथ, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, अष्टपाहोड़, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन आदि सारे बताए हैं, लेकिन इस समय में हम जैसे मंद बुद्धि बहुत ज्यादा है, तो इतने बड़े ग्रंथ हैं जो प्राकृत में हैं, संस्कृत में हैं, सीधे नहीं समझे जा सकते हैं। तो पंडित जी ने एक शब्द यूज किया जिस पर हमने चर्चा की थी, धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। इन रीजनल लैंग्वेज he decided to just write this ग्रंथ। धर्मानुरागवश मतलब कि मैंने तो समझ लिया ये ग्रंथ, क्योंकि मुझे संस्कृत भी आती है, प्राकृत भी आती है, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं आती है। तो मुझे जो व्यक्ति जैसा हो उस भाषा में मुझे वो लिखना पड़ेगा। That's why पंडित जी decided to write this ग्रंथ in देश भाषा में, in that regional language। हिंदी की फैमिली की भाषा एक्चुअली में ढूढ़ारी, इसलिए वो हिंदी ही है, देवनागरी लिपि है। तो इसलिए मुझे मैंने ये ग्रंथ लिखा है। इसमें किसी प्रकार का कोई मेरा मान का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी प्रकार से कोई यश का उद्देश्य नहीं है, मात्र धर्मानुराग वश ही मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ऐसा ऐसा क्लियर कहा है पंडित जी ने यहाँ। और हमें दिखता भी है कि इतने नॉलेजेबल पर्सन अपना टाइम देकर अगर हमें ये ग्रंथ लिख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और हमें क्या हो सकती है। क्या होती है, हमें इन प्रेरणा मिलती, पता है, टोडरमल जी से प्रेरणा मिली, जान देने की कीमत पर भी वो अपने तत्व ज्ञान से ना डगे, और यहाँ उनने क्लैरिफाई किया कि मैंने ये जो रचना की है ग्रंथों की ना, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मान नहीं है, और ये मैंने क्यों लिखा ये उन्होंने क्लैरिफाई किया, ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले। कोई जो है वो क्लैरिफाई तो करेंगे ना, वो कोई मेरे मान के लिए नहीं है, किसी प्रकार से और कोई उद्देश्य नहीं है, ये केवल और केवल धर्मानुराग वश मैंने ये दिए। तो हमें इनसे मोटिवेशन भी मिलता है। मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज जस्ट इन स्मारक, आई वाज स्टडीइंग, एक 85 साल के हमें गुरुजी बनारस से पढ़ाने आया करते थे, न्याय के ग्रंथ पढ़ाते थे। वो 85 इयर्स में फ्रॉम बनारस टू जयपुर आते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 साल ही आ पाए न्याय पढ़ाने।
but he was so knowledgeable. हम जब उनसे पूछते थे कि गुरुजी आप इतनी दूर से और 85 इयर्स की एज में हमें पढ़ाने आते हैं, तो क्या चीज मोटिवेट करती है आपको? तो उन्होंने बोला कि भाई मरना तो सबको ही है, लेकिन मैं ये परंपरा छोड़ के जाऊंगा ना कि जिन धर्म पढ़ाने के लिए आपको उम्र नहीं देखना है, दूरियां नहीं देखनी है, तो मैं एक लोगों को परंपरा, आगे के विद्वानों को एक परंपरा दे के जाऊंगा ना मैं। तो वो बात ध्यान में रही और कहीं ना कहीं वो चीज उनसे मैंने सीखी। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि मैं आई वॉज बिजी होल डे और ऐसा ऐसा हुआ, तो वो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज जाए कि स्वाध्याय कराने वाला जब इतना कुछ एडजस्ट कर लेता है तो हमें करने के लिए भी एडजस्ट करना है, और आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कब वो चीजें एक्सेप्ट करना चालू कर दी, क्योंकि बताई जा रही है ना आपको। ऑटोमेटिक आपको जब टोडरमल जी का उदाहरण मिला, जब मैंने हमारे जो न्याय पढ़ाने वाले गुरुजी थे उनका मैंने एग्जाम्पल दिया कि 85 इयर्स में बनारस से जयपुर पढ़ाने आते थे, वो एक एक महीने रुक के जाते थे वो, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक दिमाग में एक मोटिवेशन हुआ। और उन्होंने जो बोला था कि भाई मोटिवेशन मिलता है ना लोगों को, आगे आने वाले विद्वानों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप बताइए। तो इससे ही तो मिलेगा कि भाई हमें लोगों को पढ़ाना है, पढ़ना है, अध्ययन कभी बंद नहीं करना है। ऐसे ही टोडरमल जी ने यहाँ भी धर्मानुराग वश लिखा है, उसमें कोई और उद्देश्य नहीं है। तो उससे हमें धर्मानुराग वश जो उन्होंने लिखा है, इससे हमें समझ में आया कि पंडित जी का किसी प्रकार का कोई और उद्देश्य नहीं है, मात्र और मात्र वो हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने ऐसा लिखा है, और अन्य कोई उद्देश्य हमें भाषित नहीं होता, ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। फिर इस तरह से जो हमने ग्रंथ लिखा है वो उनमें सत्यार्थ पद की परंपरा ऐसे बनी। मतलब जो आपने क्वेश्चन उठाया था ना इसमें कि भाई आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, हम कैसे माने? तो पंडित जी ने कहा कि देयर आर मैनी ग्रंथ, लब्धि सार, गौमट सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र, पंचास्तिकाय, समय सार। There are many granths and I have studied all those granths. And on the basis of that study, I have decided to write this Moksha Marga Prakashak only Dharmanurag Vash. There is no any other motto or purpose to write this granth. So you can consider it is as a valid. ये जो है सत्यार्थ पद इसमें है, सत्य पद है, ऐसा आप इसमें मान सकते हैं। इस तरह से उनने अपनी बात कही, और अपनी बात सबको कहने का अधिकार है। जैसे आप लोगों ने भी अपनी बात कही ना, मैंने आप लोगों से पूछा हाउ वाज योर 2021, तो आप लोगों ने अपनी बात बताई। मैं अपनी बात बताना भूल गया, तो मैं अपनी बात भी बता देता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से मेरा और गौरव जी का जो एक ग्रोथ का हमेशा हमारा जो एक माइंडसेट रहा है, वो ग्रोथ से हमारा तात्पर्य हमेशा अध्यात्म से रहा है, और वो समय हमारा उसी में जाता है। दिनचर्या आप लोगों को मेरी पता ही है। आई जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock, 4 नहीं तो 5, 6 घंटे की नींद का बना रखा है। मतलब मैंने दिमाग को ऑर्डर दे रखा है, तो वो 6 घंटे की नींद जब पूरी होती तो उठाता मेरे को। अगर मैं 10 बजे सोता हूँ, वैसे ऑलवेज 10 बजे सो जाता हूँ, तो वो 4 बजे उठा देता है। 11 पे सोता हूँ तो 5 बजे उठा देता है। वो प्रतीश जी जानते हैं कि अपन अपने दिमाग को जो ऑर्डर दो ना वो फॉलो करता है। तो उठ के बस तैयार होके मैं नहा लेता हूँ, अर्ली मॉर्निंग नहा लेता हूँ, और स्वाध्याय से चालू होता है। फिर उसके बाद मंदिर जाना, पूजन करना, वहीं मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करना। तो मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करने का एक आनंद अलग होता है। बहुत मतलब हमारे इंदौर तो ऐसे देखो तो एक बहुत अच्छा गोल्डन प्लेस है इस चीज के लिए कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ और हमें कॉलोनी मंदिर, कॉलोनी के बाहर मंदिर, और आसपास 10 मंदिर आसपास, और वैसे ही माहौल है। तो उसके बाद बस फिर अपनी दिनचर्या चालू होती है, शाम को भी स्वाध्याय करते हैं। तो मुझे 2021 निकला तो मुझे हमेशा वैसा लगता जा रहा है कि समय निकल रहा है और मुझे जितना स्वाध्याय करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। एक तत्व प्रचार के मुझे बहुत विकल्प रहते हैं। तत्व प्रचार के विकल्प से तात्पर्य ये रहता है कि दुनिया में अज्ञान है, कोई समझ नहीं रहा है। ये कहने की जगह मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ ना। लोगों को भला बुरा बोलने से क्या तात्पर्य कि वो देखो वो ऐसे हो गए, जैनी तो जैनी रहे नहीं।
तो तत्व ज्ञान, तत्व प्रचार के विकल्प रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो काफ़ी सारे नए जो ग्रंथों को डिजिटलाइज़ करना है, उसकी प्लानिंग करी टीम के साथ बैठ के अभी। कभी मौका लगेगा तो आप लोगों से डिस्कस करूँगा मैं। काफ़ी सारे उन ग्रंथों की प्लानिंग करी। आप लोगों को जान के खुशी होगी, हमारा केवल ज्ञान टीवी मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और पिछले 2 साल में हुए हैं जो ग्रोथ हुई पूरी। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से ही चालू हुआ था ये। और उसमें लाभ लेने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो एक तत्व प्रचार का एक रहता है और एक व्यापारिक एक प्रतिबद्धता तो है ही, आप लोगों की जॉब है, व्यापार है, ऐसे एक व्यापारिक प्रतिबद्धता है। तो ये मेरी अपनी बात है कि इस तरह से स्वाध्यायमय जीवन रहे, साथ में लौकिक कर्तव्य तो पूरे करना है, वो तो करना ही पड़ेंगे, लेकिन स्वाध्यायमय जीवन रहे, ऐसी मेरी खुद के लिए भावना है और आप सबके लिए भावना है। तो जैसे हमने अपनी-अपनी बात कही, ऐसे पंडित जी ने भी अपनी बात कही कि कोई ये ना बोले कि अच्छा इतने सारे ग्रंथ थे, फिर क्यों लिखी आपने? तो फिर पंडित जी ने अपनी बात कही कि भैया ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ समझ नहीं सकते आप लोग और यहाँ जो मैंने लिखा है ये देश, वहाँ समय आप लोगों के धर्म के अनुरागवश लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है और ये मैंने पूरा इन ग्रंथों के आधार से लिखा है। तो इस तरह से पंडित जी ने ये चर्चा करके यहाँ पूरी समाप्त की। फिर एक है नेगेशन ऑफ राइटिंग ऑफ फॉल्स वर्ड्स, हिंदी में इसका होता है असत्य रचना प्रतिषेध। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा तो फिर आपने सत्य लिखा, असत्य नहीं लिखा, इसका क्लैरिफिकेशन पंडित जी ने दिया है। तो ये बहुत अच्छा है। इवन हिंदी में एक सेंटेंस है कि भई अगर असत्य पद रचना प्रतिषेध करें तो निगूढ़ आदि में गमन करना पड़े। असत्य रचना की परंपरा से अनेक जीवों का महान बुरा होगा और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलस्वरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, सो मैं तो ऐसा विपरीत कार्य नहीं करूंगा। इस तरह से उनने असत्य पद रचना प्रतिषेध, मतलब नेगेशन ऑफ राइटिंग फॉल्स वर्ड्स में भी उनने काफी अच्छी अपनी बात कही है। वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने एक नव वर्ष का एक दूसरे का प्रोग्रेस कार्ड देखा हमने कि किस तरह से हमारी प्रोग्रेस रही एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। अच्छा भी लगता है कि आप लोग ही मेरे दोस्त भी हो और हम लोग सब साथ में स्वाध्याय भी करते हैं। तो इससे अच्छा तो और कोई मौका, अवसर, रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। तो आज हमने मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा, नेक्स्ट टाइम हम लोग समय साथ पढ़ेंगे। अभी हम क्लास का हमारा समय हो गया है। कुछ पूछना था आपको, कुछ कहना हो तो कह भी सकते हैं आप लोग। ये तो हम और एक चीज मैं भूल गया कहने को कि गौरव जी जो मोक्ष शास्त्र मतलब अपने तत्वार्थ सूत्र जो ले रहे हैं, तो मैं भी वो भी उसका पहला अधिकार मैंने भी पढ़ा और सुन रहा था, तो वो भी एक बहुत अच्छा मीन्स क्लास चल रहा है उनका। तो गौरव जी को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं हमारी तरफ से और उनका भी जो प्रयास चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, वो क्लास चल रही रेगुलर और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा जीवन थोड़ा सा अध्यात्म में रहे, पढ़ने पढ़ाने में अध्यात्म में रहता ना। तो ऐसी मेरी शाम की क्लास चलती है, गौरव जी की सुबह की चलती है, फिर आप लोगों के साथ चलती है, ऑस्ट्रेलिया की चलती है, खुद का स्वाध्याय रहता है। और वैसे भी आजकल वीडियोस जो डाल दिए होते हैं तो वो इजी हो जाता है कि जो अपन अपने सबका समय के हिसाब से सब सुन लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। और फिर मैं तो उनको फिर क्वेश्चंस या ऐसे मैसेज भी कर देता हूँ। हाँ, नहीं टेक्नोलॉजी का काफी फायदा हुआ कि अगर प्रवचन निकल भी जाए तो आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं आप। राइट, नहीं सर, भी उसके साथ ये भी होता है कभी कभी क्वेश्चन जो दूसरी बार सुनने पे भी क्लेरिफाई भी होता है। सो वो टेक्नोलॉजी से एक फायदा है कि आपने एक बार सोचा और उसके बारे में फिर थोड़ा उसको रिवाइज किया या उसके बारे में फिर से आपने कुछ चिंतन किया तो आपको फिर से उसका क्लैरिफिकेशन या दूसरा आंसर। अच्छा, हमें भी वो बताने में ना, ऑनलाइन बताने में बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन डेटा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो डेटा एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए।
तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ। हाँ हाँ सौरभ जी, मुझे वो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यू नो क्रॉस वेरीफाई करने वाला अगर कोई सोचे तो बहुत ही, अगेन आई डोंट थिंक इसको करना चाहिए, बट अगेन यू नेवर नो। नहीं, हम तो जानते ना, कर लेगा तो बाहर शब्द है ही नहीं, तो कोई कैसे करेगा। राइट। तो बढ़िया। और किसी को कोई अपने विचार व्यक्त करने हो तो कीजिए, नहीं तो हम लोग अभी जिनवाणी स्तुति लेते हैं। हाँ, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।